Hi everyone, welcome once again guys. RBI Grade B, dream job of lakhs and lakhs of people who are ready to do anything to get this job. वो घंटों पढ़कर इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए तैयार हैं, but still they are not able to crack this exam. And many people have their own perceptions, their own reasons that why they are not able to crack this exam or why they will not be able to crack this exam even before trying. तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करूंगा एंड आई विल आल्सो टेल यू द रियल रीजन दैट व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. देयर इज ओनली वन रीजन फॉर दैट. सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन लोगों की, आई मेड सम नोट्स, आई विल कीप रेफरिंग टू देम. सबसे पहले इफ आई वांट टू टॉक अबाउट दोस पीपल हु आर रियली पेसिमिस्टिक, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है, उनके अपने ही रीजंस होते हैं. सबसे मेजर रीजन, सर आई डू नॉट हैव अ रेलेवेंट बैकग्राउंड बिकॉज आई एम फ्रॉम फाइनेंस, आई एम फ्रॉम नॉन फाइनेंस और नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड. अरे एग्जाम एक जर्नलिस्ट एग्जाम है. दे आर मेकिंग everybody who is graduate in any stream to be eligible for this exam. Even in the syllabus it's mentioned like general finance. And if you see the hit rate, I would say more than 60%, 70% of the people who are getting selected have nothing to do with the particular background that is helping them to crack this exam. तो ये सिर्फ आपकी एक मनगढ़ंत सोच है which is actually helping you to not make that effort which you should, और आप आराम से बैठे हो कि ये तो मेरे से नहीं होगा और बस इसको छोड़ दिया. The next reason which most of the people give is gap years. They are worried. I mean, it's not about that they are not preparing, but they are worried. पढ़ते पढ़ते सोच वहीं अटकी रहती है, यार मेरे तो गैप ईयर्स हैं यार, वो तो मुझे इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि आप इतने साल क्या कर रहे थे, आप तो बिल्कुल बेकार आदमी है. It's not like that, trust me. When you have gap years, it's not about, I mean, gap years. It's more about what is the reason for gap years. You might have a valid reason and you might have invested your time in doing something while you were in those gap years. You have not wasted your time. If you have prepared for 5 exams, you have learned so many things by preparing for those exams. They have shown you the reality of life. Now you understand more about your life. So gap years is not कि आपने अपनी life waste की है उस साल में. You have learned a lot. You have invested your time. Though you have not got the result, that's okay. Do not let it just kick in your mind again and again कि मेरे gap years है, मेरा नहीं होगा. I remember one of my students with 8 years as gap years, he cracked the exam at the age of 29 और उसके इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स आए थे भाई. तो गैप ईयर्स होना कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं अब होगा ही नहीं. फ्रेशर्स के भी कम मार्क्स मिले हैं, वर्क एक्स वालों को भी कम मार्क्स मिले हैं. इट्स ऑल अबाउट लाइक, आई मीन, हाउ मच रियली यू वांट टू गेट दिस जॉब. सब चीजें वैसे चलेंगी. थर्ड रीजन अगेन बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, सर मैं तो एवरेज हूं, मैं तो एवरेज इंटेलिजेंट हूं, मैं तो एक एवरेज कॉलेज से पास आउट हूं. दैट्स ओके. यहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग विच आई हैव रियली सीन इन माय एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फॉर आरबीआई ग्रेड बी बट इन लाइफ. यू माइट बी फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज और यू माइट बी rating yourself as average in terms of intelligence. वो एक बहुत ही minute चीज है. What really matters is that your efforts are not average. Your capabilities might be average. That's okay. तो जब आप सोचते हैं ना कि मैं तो average हूं, you're really being average in your efforts. Capability तो बन जाती है. It's all about efforts. और fourth reason जो बहुत लोग बोलते हैं, time कम है. टाइम पता नहीं, जैसे कहीं बाजार में मिलेगा और आप खरीद लेंगे कभी एंड देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. 50% of the people who crack this exam each year are working. If they can manage your time, so can you. What is the problem with you? अगर आप वर्किंग है तो आपके जैसे ही 50% से भी ज्यादा लोग हर साल निकलते हैं. अगर आप नॉन वर्किंग है फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है. एंड ट्रस्ट मी, द टाइम यू एक्चुअली वेस्ट ऑन दिस उपकरण, इसको मैं बोलूंगा ये मोबाइल, मतलब बार बार हम इसको देखकर पता नहीं क्या इसमें अपनी लाइफ का कुछ नक्शा ढूंढते हैं. वी आर जस्ट वेस्टिंग एटलीस्ट 2-3 आवर्स ऑन दिस उपकरण every day. Even if we can just utilize that, I mean, we can do lots and lots of things. You do not need to manage your time. You have time. Where we are lacking is managing our focus. तो ऐसे बहुत और भी reasons हैं which people keep telling me when they talk to me. I mean, as a mentor,
आई रियली फील इट बीइंग एन आई ओपनर कि क्या क्या रीजंस नए नए हर बार आ रहे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये लोग they are being underconfident, they are being pessimistic, they are just finding excuses, or they really need some good mentor who can guide you. तो इनमें से कुछ भी रीजन ऐसा नहीं है which is stopping you that you will not crack this exam. इनमें से वो रीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। And those who are really overconfident, the other blend of people, उनको क्या लगता है कि बस ये जॉब लेनी है, and they get attracted by that salary, by that respect, by that job security, by that lifestyle, गाड़ी है, अच्छा घर है, they get attracted by that. और वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं तो ये एग्जाम क्रैक कर ही लूंगा यार, चाहे जिंदगी में कुछ ना किया हो, और अभी भी कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम के क्रैक करने के सपने देख लेने। देयर इज अनदर बंच ऑफ पीपल विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। और उनको क्या लगता है कि बस एग्जाम क्रैक करना इज ऑल अबाउट कंटेंट, दैट आई विल रीड लॉट ऑफ कंटेंट, आई विल रीड कंटेंट फ्रॉम व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये 2 कोर्स ले लूंगा। एट द स्टार्ट दे आर रियली मोटिवेटेड, आफ्टर 5 days ओ यार तो बहुत सिलेबस है यार, ये तो बहुत मुश्किल है यार, तो हो ही नहीं रहा, बिकॉज उन्होंने करना ही नहीं था। और अगर किसी तरह कंटेंट पढ़ते 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 गए, एट द एंड यू विल रियलाइज दैट इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट, देन यू विल रियलाइज oh, it's not about content, it's about strategy. I need a good strategy. Most of the toppers are talking about strategy. और हम strategy ढूंढने लग जाते हैं, सिलेबस में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा चैप्टर में क्या सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं। Now, trust me, none of these also can be the reason that you will not crack this exam. बहुत कंटेंट मिल जाएगा यार, बहुत स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, भरी पड़ी है। Where you are actually lacking, listen to me very carefully, is the intent, that passion, that junoon inside you, that yes, I really want to crack this exam. और जो वो passion है, जो intent है ना, why it actually lacks in you is because you don't have clarity that why you are doing this. Most of you when you start, it's mostly about that, okay, what I need to do. मुझे ESI पढ़ना है, मुझे फाइनेंस पढ़ना है, मुझे MCQs करने हैं, मुझे ऐसे राइटिंग करना है, मुझे क्वांट पढ़ना है, मुझे रीजनिंग पढ़ना है। यू ऑल विल हैव दैट कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे एडिटोरियल पढ़ना है, व्हाट करना है। देन हाउ, कहां से करना है भाई, कितने एमसीक्यूज करने हैं, एडुटैब का कोर्स लेना है, मुझे हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है, मुझे ये यहां पे जाकर मुझे अपने ग्रुप में जाकर मुझे डेली ऐसे राइटिंग लिखना है। यू मेक लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, दिस इज अबाउट स्ट्रैटेजीज कि करना कैसे और ये क्या करना है। लॉट ऑफ अस आर स्ट्रक हियर, लॉट ऑफ अस आर always working on here without understanding that the real motivation, the real intent will come from why. ये clarity होनी चाहिए। Now one of my students, I remember, I always ask this question that why do you want to crack this exam? He gave me a very good reason that sir, being from a small village, मेरे गांव में अभी भी बैंक नहीं है, लोगों को अभी भी मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, अभी भी मनी लेंडर्स रूल कर रहे हैं, अभी भी बहुत खराब सिस्टम है, लोग 15% ब्याज दे रहे हैं। एंड आई रियली वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बीइंग वर्किंग इन आरबीआई विल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। ही वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट। और एक सीरियस उसके अंदर एक मोटिवेशन थी कि उस एरिया में वो सीरियसली काम करना चाहता है, बनावटी नहीं था। सो अगर वो वाई क्लियर होगा ना, अगर वो वाई क्लियर होगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सर मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वंस दैट व्हाई इज क्लियर, बिकॉज विद व्हाई यू विल गेट दैट इंटेंट, एंड इंटेंट इज एवरीथिंग गाइस, नथिंग हैज बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट इंटेंट, आई कैन टेल यू। तो जिस दिन वो इंटेंट आ गया ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लैक ऑफ इंटेंट का एग्जांपल देता हूं। लॉट ऑफ पीपल हु आर सर्फिंग ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम, दे नो that their life can only be taken to another level if they study, अगर वो लाइफ में कुछ बन जाए, बट फिर भी वो सोशल मीडिया देखते रहते हैं, ये मालूम होने के बाद भी कि वो अपना करियर खराब कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट लैक ऑफ इंटेंट, दैट इज ऑल अबाउट लैक ऑफ इंटेंट। और एक अलग ही ब्रीड है, कल से पढ़ूंगा, अगेन दैट इज लैक ऑफ इंटेंट। यू नो दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम टुडे, बट यू कीप पुटिंग इट कि कल से पढ़ूंगा। अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा करियर खराब किए हैं, वो है कल से पढ़ूंगा, वो कल कभी नहीं आया है। और मैं आपको कुछ अगर इंटेंट के एग्जांपल दूं गाइस, आई मीन आई सीरियसली वांट टू टेल यू दिस इंसिडेंट। वन ऑफ माय स्टूडेंट कॉल्ड मी कि सर मुझे आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है,
And I told him that we can always talk on the phone because physical meetings are very lengthy, like they're very time consuming and you have to plan for them. But he insisted again and again. He called our support 7-8 times कि नहीं sir, मुझे तो physically ही मिलना है. I was like, okay. So we set up a meeting. Now I was unknown to the fact. Now what happened that day when he came to the office, really that was shocking. He was not having his legs. His father and one of the support members actually carried that person to my cabin. I was really shocked. I mean, I could not imagine how embarrassed I was feeling that कि मैं इस बंदे को मना कर रहा हूं कि हम फोन पे बात कर लेते हैं, but in spite of not being physically fit to come upstairs and meet me, he was adamant कि मुझे आपसे मिलना है. I mean, somebody on wheelchair coming to meet you to discuss the exam strategy, is all about intent. मैं नहीं जानता उसका होगा या नहीं होगा, but this is the intent I am talking about, guys. This is the intent. तो मुझे मैं मतलब सल्यूट करूंगा ऐसे कैंडिडेट्स को कि जो इतना मेहनत, इतना ज्यादा लाइफ में करने का जुनून रखते हैं. होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, बट ऐसे लोग कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं, जो मैंने देखा है. बाकी आपकी किस्मत तो है ही. एक और एग्जांपल दूंगा. वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैं उससे 2 महीने पहले मिला था. वंस आई वाज इन दिल्ली. बहुत मेहनती है. सो ही वाज रिक्वेस्टिंग मी अगेन एंड अगेन, सर आई वांट टू मीट यू वंस यू आर इन दिल्ली. मतलब अगेन द अमाउंट ऑफ एफर्ट. दैट गाय लॉस्ट हिज फादर. उनकी मदर बेड पे हैं एंड ही इज वर्किंग 9 to 6. 6 से 9 ट्यूशन लेते हैं ताकि आई मीन ही कुड अरेंज मनी फॉर द मैरिज ऑफ वन ऑफ हिज सिबलिंग्स. 9 से 1 वो पढ़ते हैं. सुबह 6 बजे उठकर फिर वो ट्यूशन लेते हैं एंड देन ही गोस टू द ऑफिस. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट पीपल आर मेकिंग. और हम कहते हैं हमें कैपेबिलिटी नहीं है, हमें ये नहीं है, हम तो यूपीएससी वाले नहीं है. अरे मैदान में उतरो तो सही, देन यू विल रियलाइज सब कुछ आ जाता है. एक बार जुनून होगा तो एक बार जुनून रख के देखिए. एंड गाइस, दिस टाइम व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू इज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट फ्रॉम योर बर्थ. यू हैव टू डिसाइड हाउ डू यू वांट टू यूज दिस टाइम. आपको प्रिपरेशन करनी है या मस्ती करनी है. बुक्स पढ़ लो या यूट्यूब देख लो, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग. If you do not embrace the pain of hard work right now, later you will have to embrace the pain of regret, and which will really hit you hard. And all I want to tell you today is that please wake up. Please wake up. Do whatever you want to do in life. It's not about cracking RBI Grade B, but be passionate about you. Show some intent. Show some intent in your life. Live your life with intent. Create a story of yours. When you are on the deathbed, you should not regret what you have done in the past. Rather, you should be proud of your accomplishments. That should be your end goal. And that is the reality. So that is all I want to say. Journey किसी की भी आसान नहीं है, किसी की भी आसान नहीं है. हमें दूर से लगता है कि ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो बहुत सक्सेसफुल हो गया है. जर्नी उनकी भी आसान नहीं थी. तो आपको भी अपनी जर्नी में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, बट द ओनली वे टू टैकल दोस डिफिकल्टीज इज टू हैव लॉट ऑफ इंटेंट. और वो इंटेंट बाजार में किसी जग में नहीं मिलेगा, किसी बॉटल में नहीं मिलेगा. यू हैव टू इनकलकेट दैट इंटेंट इनसाइड यू. सो प्लीज बूस्ट योरसेल्फ, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड शो सम इंटेंट. एंड लेट मी नो इन द चैट विंडो, in the comment section, that yes sir, I will from today onwards have a excellent intent towards cracking this exam. That is what I want from all of you. So please type in the comment section that sir, from today onwards I have an excellent intent to crack this exam. And when you type it, be conscious, be with it, because this is what you should be doing from that moment onwards. लिख के भूल गए तो कोई फायदा नहीं. And lastly, I want to tell you about this guidebook, guys. This is our guidebook for RBI Grade B, which is everything for RBI. अगर आप थोड़ा सा भी इंटेंट रखते हैं तो ये चीज तो आपको डाउनलोड कर ही लेनी चाहिए, which will give you the syllabus, which will give you the previous year questions, and which will give you the detailed list of book list and resources. And these are our courses. Gold and silver pack. Gold is for phase 1, phase 2 and interview, which contains everything end-to-end preparation about your RBI Grade B exam. No need to read anything outside the course. There's a silver pack, which is mainly for phase 2, but it also contains phase 1 GA, and both have interview preparation component in them. And if you want to check a demo material,
There is a link in the description. Download free sample material going to that link. Watch that. If you feel that this is quality, this is comprehensive, you can always get on board with the EduTap community. Have a nice day. Bye-bye. Jai Hind. Love you all.